Hello students, welcome back. Today we will discuss about the very important topic, that is mensuration cycle. Mensuration cycle is a systematic changes that occur in a female reproductive system. Female reproductive system में जो बहुत सारे systematic changes आ रहे हैं उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे, and that all changes togetherly known as mensural cycle. Cycle means these changes repeat after every regular interval of time, and that regular interval is 28 days, and this generally is called menses. Why menses? Because a menses term means a month, means ये cycle जो है after approximately 1 month के बाद repeat हो रही है, and this cycle is a special characteristic feature of female primates. प्रीमेट फीमेल, जो प्रीमेट्स हैं उन सभी फीमेल्स में ये मेंजुरल साइकिल होती है, और जो नॉन प्रीमेट्स हैं उनमें ऑस्ट्रल साइकिल होती है. यहाँ पे हम मेंजुरल साइकिल की बात करेंगे. दिस मेंजुरल साइकिल स्टार्ट्स एट प्यूबर्टी इन फीमेल, means when the reproductive maturity occur, this menstrual cycle start and female become capable to reproduce. At puberty, that is generally the age of teenage, that is 13 to 15 years of age में ये start हो रही है, and it ends at 50 to 55 years of age. And when this cycle start, first menstrual cycle in female is called menarche, and the last menstrual cycle is called menopause. किस तरह से डिफाइन करें कि when the female ovary start releasing an hormone estrogen, and then this menstrual cycle start is menarche, and when the amount of this estrogen hormone reduces, then it is menopause. menopause पे के बाद फीमेल में बहुत सारे ऐसे चेंजेस होते हैं जो बॉडी के लिए नेगेटिव इफेक्ट शो करते हैं. वाई? बिकॉज menopause मीन्स द menstrual cycle stops, एस्ट्रोजन का लेवल बिल्कुल रिड्यूस हो जाएगा. अगर एस्ट्रोजन का लेवल रिड्यूस होगा तो क्या इंक्रीज हो जाएगा? टेस्टोस्टेरोन. That may leads to appearance of facial hairs. That's why the females may appear some facial hairs after the menopause, and mood swings also occurs after the menopause, and some of the diseases related to reproductive system may cause to the females generally after the menopause. So this menstrual cycle is further divided into 4 sub phases. So let's discuss all these sub phases, और during each phase किस phase में क्या क्या changes आ रहे हैं. बिकॉज menstrual cycle के टाइम पे ओवरी में भी changes आएंगे, hormonal changes भी आएंगे, physical changes भी आएंगे, यूट्रस में भी changes आएंगे, and the most important role in the menstrual cycle is of pituitary gland, because pituitary gland ही hormones release करेगी जिसकी वजह से ये menstrual cycle regulate होगी. So let's talk about them all. This menstrual cycle is further divided into 4 subphases. First is mensuration. Mensuration cycle, mensuration phase, also known as bleeding phase. This phase lasts from 1 to the start of mensuration or a bleeding during the female during this cycle is first day, and it lasts up to the maximum of 5 to 6 days. Means first 1 to 5-6 days is of bleeding phase, that is mensural phase, and then proliferative phase, also known as follicular phase. This phase lies from 10 to 12 days after mensuration phase. Then ovulatory phase, that is the 14th day of the cycle. This phase only lasts for 24 hours, and this is 14th day of the cycle that starts from the day 1 when mensuration start. And then luteal phase, or also known as secretory phase.
नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट दीज बाय वन. हम यहाँ जब पढ़ेंगे तो हम सब चीज़ों को कंसिडर करेंगे. फर्स्ट इज पिट्यूटरी हार्मोन. Pituitary hormone. Then what are the hormones? Effect of the hormones released by pituitary. Pituitary 2 hormones release करती है during menstrual cycle. One is FSH and another is LH. FSH follicular stimulating hormone and LH luteinizing hormone. And then ovarian hormone. ओवरी से रिलीज होने वाले कौन कौन से हार्मोन्स हमारे यहाँ रिलीज होते हैं? ओवरी से एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन. देन ओवेरियन इवेंट्स. ओवरी में फॉलिकल्स जो बन रहे हैं वो किस तरह से बनेंगे? एंड देन यूट्राइन इवेंट. So let's discuss about these one by one. During the menstrual cycle, menstrual phase or the first phase, the bleeding phase, the ovum that is present in a fallopian tube will sheds up, breaks up, and the inner wall of the uterus, that is endometrium, that also sheds up. Ovum और endometrium वो दोनों shed up हो जाएंगे और release out from the vagina in the form of blood and mucus. Why so? Because there is no fertilization. क्योंकि कोई fertilization नहीं हुई, इसीलिए they sheds up and released out from the vagina in the form of blood and mucus. That's why it is called bleeding phase. Now उस टाइम पे FSH हार्मोन काम नहीं कर रहा. देर इज बिल्कुल बिलो लेवल ऑफ और ऑप्टिमम लेवल ऑफ FSH एंड LH हार्मोन एज वेल एज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन भी कोई वर्क नहीं कर रहे हैं. बिकॉज कोई एक्टिविटी, रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं हो रही. ओनली द ओवम एंड द एंडोमेट्रियम ब्रेक्स अप एंड रिलीजेज आउट फ्रॉम द वेजिना इन द फॉर्म ऑफ ब्लड एंड म्यूकस. तो ओवरी में क्या? ओवेरियन इवेंट्स कुछ भी नहीं. एंड यूट्राइन एंडोमेट्रियम sheds up. Clear? Now move to the proliferative phase or the follicular phase. एक बार ये mensuration phase खत्म हो गया, उसके बाद after 5th or 6th day of this phase, the ovary start preparing the new follicles. If during this menstrual cycle जो ये endometrium के साथ जो egg release हुआ था, suppose it is from right side, now the left side of the ovary start preparing the new follicles, primary follicle then secondary, so mature Graafian follicles are formed. तो यहाँ पे जब follicles बन रहे होंगे तो that's why it is called follicular phase. और proliferative phase, proliferative means division होके किसी चीज़ का बनना. तो follicles का बनना follicular phase and वो division से बन रहे हैं तो that's why proliferative phase. At this time, estrogen increases and progesterone also increases. FSH pituitary gland FSH और LH रिलीज कर रही है जिसकी वजह से ये follicular phase हो रहा है. मीन्स द follicles की formation स्टार्ट हो रही है. एंड follicles हैं तो ऑब्वियसली एस्ट्रोजन हार्मोन, क्योंकि हमारे follicles से क्या रिलीज होगा? एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होगा. follicles हैं इसलिए एस्ट्रोजन का अमाउंट इंक्रीज होगा. बट नो रिलीज ऑफ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन. ओवेरियन इवेंट, ओवरी इज रिलीजिंग दैट फॉलिकल्स, तो हम क्या कहेंगे? फॉर्मेशन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल. यहाँ पे ग्राफियन मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल की फॉर्मेशन हो रही है. एंड यूट्राइन इवेंट, अब यूट्रस इज ऑल्सो प्रिपेयरिंग इटसेल्फ फॉर द फीटस. अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है, जाइगोट को कैरी करने के लिए एंडोमेट्रियम वॉल शुड बी स्ट्रॉन्ग, तो अब एंडोमेट्रियम की भी फॉर्मेशन होगी. तो यहाँ पे एंडोमेट्रियम भी क्या होगी? एंडोमेट्रियम प्रिपेयरिंग इटसेल्फ. अभी फॉर्मेशन नहीं होगी, प्रिपेयरिंग इटसेल्फ. बिकॉज एंडोमेट्रियम को फॉर्म करने के लिए क्या चाहिए? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, और वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन अभी रिलीज नहीं हुआ. ऑन द 14th डे ऑफ द साइकिल, एज एन एवरेज ऑफ 28 डे साइकिल में 14th डे ऑफ साइकिल पे क्या होगा? LH सर्च. यहाँ क्या होगा? LH सर्च. LH जो हार्मोन है, ये LH हार्मोन जो है क्या हो जाएगा? मैक्सिमम. इसके मैक्सिमम होने की वजह से नाउ द फॉर्मेशन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल जो होती है उस फॉलिकल में से ओवम क्या होगा? रिलीज हो जाएगा एंड लीड्स टू ओव्यूलेशन. ओव्यूलेशन होगी तो साथ में क्या बनेगा ओवम के साथ? corpus luteum is also formed. Once ovulation occur, LH surge occur, ovulatory phase lies only for 1 day, that is 14th day. During this time
LH हार्मोन का अमाउंट मैक्सिमम होगा एंड देन ओव्यूलेशन अक्कर, ओव्यूलेशन होगी और ओवम रिलीज होगा और साथ में क्या बनेगा, कॉर्पस लूटियम इज फॉर्म्ड। तो हमारे ओवेरियन यूनिट में क्या लिखेंगे, ओवम रिलीज्ड कॉर्पस लूटियम फॉर्म्ड। अब क्योंकि कॉर्पस लूटियम फॉर्म हो चुका है तो धीरे धीरे प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्या होगा, इंक्रीज, बिकॉज कॉर्पस लूटियम रिलीजेस एन हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन सो दैट एंडोमेट्रियम बिकम थिक, और एंडोमेट्रियम थिक होगी तो प्रेगनेंसी इजीली मेंटेन होगी। इसीलिए हम क्या कहते हैं, कॉर्पस लूटियम रिलीजेस एन हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन दैट मेंटेन्स प्रेगनेंसी। तो वो प्रेगनेंसी कैसे मेंटेन कर रहा है, बाय थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम वॉल। अब सिक्रीटरी फेज में क्या होगा, सिक्रीटरी फेज में FSH का अमाउंट डिक्रीज हो चुका है, LH का अमाउंट डिक्रीज, क्योंकि एक बार वो पीक पे गया एंड देन स्टार्ट रिड्यूसिंग। एस्ट्रोजन का अमाउंट डिक्रीज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि फॉलिकल्स तो अब है नहीं, फॉलिकल्स जो प्रोलिफरेटिव फेज में बनी थी उनमें ओवम रिलीज कर दिया और क्या बचा, कॉर्पस लूटियम। कॉर्पस लूटियम के रिलीज होने की वजह से अब क्या होगा, यहाँ पे इंक्रीज ऑफ प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल इंक्रीज होता जाएगा और प्रोजेस्टेरॉन जितना स्ट्रांग होता जाएगा एंडोमेट्रियम उतनी ज़्यादा थिक होती जाएगी। तो यहाँ हम लिखेंगे थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम वॉल बिकम थिक एंड रेडी फॉर कैरिंग अ फीटस, फीटस को कैरी करने के लिए वो बिल्कुल रेडी है। सो दीज आर द डिफरेंट इवेंट दैट अकर्स इन मेंस्ट्रुअल साइकिल। कॉर्पस लूटियम बनेगा, कॉर्पस लूटियम बनने के बाद कॉर्पस लूटियम रिमेन्स एक्टिव फॉर 2 और 3 डेज, क्योंकि जब एग ओवम बना वो ओवम फर्टिलाइज नहीं हुआ आफ्टर विद इन 72 आवर्स तो वो शेड अप हो जाएगा। अगर ओवम शेड अप हो गया तो अब कॉर्पस लूटियम का भी कोई काम नहीं, कॉर्पस लूटियम भी धीरे धीरे क्या करेगा, रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा एंड हियर द कॉर्पस लूटियम चेंजेस टू कॉर्पस एल्बिकन्स, कॉर्पस एल्बिकन्स में चेंज हो जाएगा व्हाइट मास। कॉर्पस लूटियम इज अ येलो कलर ग्रुप ऑफ सेल्स, फॉलिकुलर सेल्स, और धीरे धीरे ये रिड्यूस हो जाएगा सिक्रीटरी फेज में आके, क्यों, क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, और फिर कॉर्पस एल्बिकन्स व्हाइट मास में चेंज हो जाएगा जिसकी वजह से धीरे कॉर्पस लूटियम नहीं रहा तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल भी कम होता जाएगा। अगर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम होगा तो एट द एंड ऑफ द 28 डेज जब प्रोजेस्टेरॉन बिल्कुल रिड्यूस हो जाएगा तो जो एंडोमेट्रियम की थिकनिंग को मेंटेन करना था वो हार्मोन नहीं होगा, एंडोमेट्रियम ऑल्सो शेड्स अप एंड देन when this sheds up again start of first day of next menstrual cycle. So this is how this cycle repeats. But now what happens if fertilization occurs? अगर ये ovulation हुई, corpus luteum बना और फर्टिलाइजेशन हो जाती है, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो कॉर्पस लूटियम रिमेन्स देयर फॉर द फुल जेस्टेशन पीरियड, दैट इज 9 मंथ्स तक पूरा रहेगा, क्योंकि जब तक कॉर्पस लूटियम रहेगा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज रहेगा और एंडोमेट्रियम थिक रहेगी एंड एंडोमेट्रियम इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द यूट्राइन वॉल थिक, तभी वो फीटस को कैरी कर सकेगी। तो इसीलिए कॉर्पस लूटियम 9 मंथ्स तक पूरा रहेगा जब तक जेस्टेशन पीरियड होगा। अगर ओव्यूलेशन नहीं हो रही तो कॉर्पस लूटियम शेड अप हो जाएगा एंड देन स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। दिस मीन्स अगर फर्टिलाइजेशन होती है ओव्यूलेशन के बाद, ड्यूरिंग दिस फर्टिलाइजेशन कब होगी, ड्यूरिंग द सिक्रीटरी फेज, अर्ली सिक्रीटरी फेज में फर्टिलाइजेशन अगर हो जाती है तो कॉर्पस लूटियम वहीं मेंटेन रहेगा एंड दिस मेंस्ट्रुअल साइकिल देन सस्पेंडेड, ये वहीं रुक जाएगी। नो इसी फेज में ये 9 जेस्टेशन पीरियड तक वहीं तक उसी फेज में रहेगी, सस्पेंड हो जाएगी, आगे नहीं बढ़ेगी। एंड दिस मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑल्सो समटाइम्स और मे बी वी कैन से रिमेन सस्पेंडेड ड्यूरिंग लैक्टेशनल पीरियड। लैक्टेशनल पीरियड मीन्स द पीरियड फॉर विच फीमेल प्रोवाइड milk to its young ones. So it also remains suspended sometimes during lactational period in female. So and at the age of 50 to 55 years this completely suspended out and known as menopause, and after that the female is not capable to reproduce. This is all about the menstrual cycle. In next class we will study about the embryonic development stage in a female reproductive tract. Thank you.